Hello students, and once again welcome back to my channel. Today we are going to discuss public and private sector. This is continuation of unit 1 and this is part 6. So if you are a commerce or management student, so this video is gonna help you a lot. So let's start today's lecture. As we have seen that there are different components of economic environment, and we have already discussed capitalist economic system, socialist economic system, and in previous lecture we have studied mixed economic system, merits and demerits and features and everything. So there are further 4 subcategories in mixed economic system. The very first is public sector, second one is private, third one is mixed sector, fourth one is cooperative sector. So in this lecture we are gonna cover the first and second portion, that public sector or private sector. So what is public sector? The question here comes. So public sector is also called as a state sector because everything is controlled by the government or the state officials. यहाँ पे क्या है कि जितने भी इकोनॉमी का कंपोजिशन होता है वो पब्लिक सर्विसेज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, ऑल दीज थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट सेक्टर या गवर्नमेंट. सो पब्लिक सेक्टर इंक्लूड पब्लिक गुड्स, वो सारे पब्लिक गुड्स को इंक्लूड करती है एंड गवर्नमेंट सर्विसेज को इंक्लूड करती है. फॉर एन एग्जाम्पल, मिलिट्री, लॉ इन्फोर्समेंट, infrastructure, public transit, public education, along with health care and those working for the government itself, such as elected officials. तो ये सारी सेक्टर्स जिसमें कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है या गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर. बेसिकली पब्लिक सेक्टर आप कम्प्लीटली ऐसे समझो कि जिसमें कि किसी भी प्राइवेट पार्टी का इंटरवेंशन ना हो, टोटली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट और स्टेट ऑफिशियल्स और इलेक्टेड ऑफिशियल्स. So there are few examples of public sector like military. Military is fully controlled by the government, like public roads, PWD departments, and there are many other departments. So those things are those segments and those sectors are covered under the public PWD departments and controlled and regulated by the governments, like public transit and public education. Public education, like if guys आपको पता ही है क्लास 1 से लेकर के 5th तक की जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, they are providing education for free. So these all are the examples of public sector. You can also take the examples of defense, army, navies. All these sectors, all these segments comes under public sector, which is controlled and regulated by government itself. So there are public enterprises as well as like those are non-profit NGOs, non-profit type of organization. Like you guys have been heard about CIL, that is Coal India Limited, NTPC, National Thermal Power Corporation. These are the private public enterprises. So all those goods or services which are being controlled by the private enterprises or the agencies or the independent form of government जो उनको कंट्रोल करती है, तो वहाँ पे जो sources of revenue होता है in addition to public funding, वो public funding के तौर पर वो revenues का use करते हैं. So ये जो मैंने आपको explanation किया, this thing is written in English over here, कि public enterprises and non-profits which like agency deliver programs, goods और services. वो programs को deliver करते हैं, goods and services को provide करते हैं, but वो independent होते हैं, but are independent of the government and may have source of revenue. उनके पास में जो sources होते हैं, पैसे का संसाधन होता है, वो revenue होता है. revenue के माध्यम से वो पैसे उनके पास में इकट्ठे होते हैं और उन्हीं पैसों को वो फर्दर पब्लिक वेलफेयर के लिए स्पेंड करते हैं इन एडिशन टू पब्लिक फंडिंग. तो पब्लिक के जो फंड होते हैं, सो दोज आर द सोर्सेज फॉर ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. And what is private sector? So private sector is basically that part of economy which is controlled by individual या controlled by a particular firm or company for the sake of profit. और उनका जो भी profit होता है, जो भी benefit होता है, वो state बिल्कुल भी नहीं लेती है, state control नहीं करती है. Everything is controlled and regulated by a private party or private firm or a company. So therefore it encompasses all for profit business. Profit business इसमें इसके अंदर में होता है and there are not owned or operated by government. So ये ना own की जाती हैं ना ही ऑपरेट की जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू. इसको कोई प्राइवेट पार्टी या प्राइवेट बंदा या कोई प्राइवेट कंपनी या फॉर्म ओन करती है. सो कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस दैट आर गवर्नमेंट रन आर पार्ट ऑफ व्हाट इज़ नोन एज पब्लिक सेक्टर. वो सारी कंपनीज, वो सारे कॉरपोरेशन जो कि गवर्नमेंट रन करती है वो पब्लिक सेक्टर होता है. वाइल चैरिटीज़ एंड अदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर पार्ट ऑफ वॉलंटरी सेक्टर. एक सेक्टर और होता है वॉलंटरी सेक्टर.
जिसमें कि चैरिटीज़ एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्टिसिपेशन होता है, या जिसमें चैरिटी और NPO मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसमें इनका रोल होता है, वो सारे होते हैं वॉलंटरी सेक्टर्स। कुछ यहाँ पे मैंने आपको टाइप्स बताए हुए हैं प्राइवेट सेक्टर के। देयर आर फ्यू टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ की सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें कि एक ही बंदा होता है। पार्टनरशिप में जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, वो मिलकर के बिज़नेस शुरू करते हैं। तीसरा होता है स्मॉल एंड मिड साइज्ड बिजनेस, कुछ छोटे तबके के जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं। लाइक आपके आसपास आपने देखा होगा कि जो स्टोर वाले हैं, शॉपकीपर्स हैं, या कोई स्मॉल लेवल पे 25 लाख 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करके जो बिज़नेस कर रहा है, वो भी प्राइवेट सेक्टर में ही आते हैं। या बड़े कॉरपोरेशन को आप देख लीजिए जो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, या they invest more than 1 crore rupees, like you can take examples of Tata, Birla and Ambani. There are some few other types like professional trade association, professions like the lawyers and the doctors or any other जो भी होते हैं वो प्राइवेट, आप देखने को प्राइवेट लोगों की क्लिनिक्स होती हैं, प्राइवेट लोग लॉयर्स जो होते हैं वो प्राइवेट लोग हायर करते हैं। और बहुत सारे हेल्थ केयर में अगर आप चले जाओगे, या अगर आप एजुकेशन सेक्टर में चले जाओगे, तो ये भी प्राइवेट पर्सन के थ्रू ही ओन किया जाता है। छठा है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन में क्या होता है, जैसे कि कोई बार्गेनिंग होता है, या ट्रेड एसोसिएशन भी इसको बोलते हैं, तो वो भी एक तरीके का प्राइवेट सेक्टर ही होता है, जिसमें कि कंपनीज़ में लोग ट्रेड यूनियन फॉर्म करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ पे बार्गेनिंग करने के लिए, या अपनी परक्विजिट्स के लिए या बेनिफिट्स के लिए वो वहाँ पे चीज़ों को रेज करते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। सो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर काफ़ी डाइवर्स सेक्टर होता है, और ये एंड मेक्स अप अ बिग पार्ट ऑफ मैनी इकॉनमीज। इट इज़ बेस्ड ऑन मैनी डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप एंड ग्रुप्स। बहुत सारे इसमें इंडिविजुअल्स होते हैं, कई सारे पार्टनरशिप भी होते हैं, ग्रुप्स भी होते हैं, और इंडिविजुअल के थ्रू भी प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस किए जाते हैं। सो देयर आर few differentiation between private sector and the public sector. The very first is governance. प्राइवेट में डायरेक्टर एंड मैनेजर होते हैं, पब्लिक में एजेंसी हेड होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, पार्लियामेंट टेंशन बिटवीन लोकेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, ये सारी चीज़ होती है। मैंडेट में क्या होता है, प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात बोलते हैं, और इसमें कॉर्पोरेट की इंटरेस्ट की बात होती है, मतलब फर्म की इंटरेस्ट की बात होती है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में वेलफेयर की बात होती है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर कर सको। कम्युनिटी इंटरेस्ट की बात होती है, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट की बात ना हो करके कम्युनिटी इंटरेस्ट की बात होती है, मतलब कि सामुदायिक, मतलब कि जो पब्लिक है उनके इंटरेस्ट की बात होती है, और इसमें ट्रेड ऑफ भी इन्वॉल्व होता है। ओनरशिप की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर पार्शियली ओन्ड एंटिटीज़ होती है, मतलब कि आप पार्शियली ओन करते हो कि प्राइवेट कंपनी जो होती है या प्राइवेट इंडिविजुअल वो उसके ओनर होते हैं। पब्लिक सेक्टर में रिलेशन टू एसेट्स रिमेन कॉम्प्लेक्स, इसमें जो भी एसेट्स होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है, प्राइवेट पार्टी के हाथ में नहीं होता, या होता है तो बहुत थोड़ा बहुत होता है। स्टेक होल्डर्स की अगर बात बोले तो प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं। पब्लिक सेक्टर में सेम सेट ऑफ स्टेक होल्डर्स होते हैं, बट वेटिंग ऑफ कम्युनिटीज़ मच हैवियर, तो उसमें जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा मच हैवियर होती हैं। गोल की अगर बात करें तो इसमें जनरली क्लियर होता है कि आपका क्या गोल है, आपका क्या मोटिव है। पब्लिक सेक्टर में ऑफन वेग टू सेटिस्फाई डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स होते हैं, उनको सेटिस्फाई करना होता है, उनको कंप्लीट करना होता है। प्रोडक्ट की चॉइस की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में डिसाइड बाय कॉरपोरेशन डिसाइड करती है कि आपका क्या प्रोडक्ट होगा, और पब्लिक में गवर्नमेंट मैंडेट डिसाइड करती है कि आप क्या प्रोडक्ट ऑफर करना चाहते हो। कॉरपोरेशन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे, ऑन द बेसिस ऑफ जो भी वो R&D कर रही है या मार्केट को कंट्रोल करना चाहती है, उसके बेसिस पर गवर्नमेंट के मैंडेट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। रेवेन्यू की बात करें तो उसमें सेल्स से इनको रेवेन्यू जनरेट होता है, और इसमें नेचुरल मोनोपोलीज के थ्रू जनरेट होता है। प्राइसेस की अगर बात करें जनरली कॉन्स्ट्रेंट बाय मार्केट तक ही कॉन्स्ट्रेंट होता है। इसमें पब्लिक में क्या होता है कि पॉलिसी के ऊपर डिपेंडेंट करती है प्राइस। कॉस्ट की अगर बात करें तो फर्म्स ओन कॉस्ट यूज़ फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए जो फर्म है वो कॉस्ट इस्तेमाल करती है। इसमें कम्युनिटी कॉस्ट का इस्तेमाल होता है, इंक्लूडिंग एक्सटर्नलिटीज़ एंड डेड वेट लॉसेस। इफ़िशेंसी की अगर बात की जाए तो उसमें टेक्निकल इफ़िशेंसी होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, टेक्निकल इफ़िशेंसी होनी चाहिए। बट अगर पब्लिक की बात करें तो इसमें इकोनॉमिक इफ़िशेंसी इज़ ऑफन
एट द कॉस्ट ऑफ टेक्निकल इफिशियंसी। इस पर इकोनॉमिक इफिशियंसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल की अगर बात बोले तो कैश फ्लो क्रूशियल होता है सर्वाइवल के लिए प्राइवेट में, और कैश नॉट एन ऑपरेटिंग कांस्टेंट, इसमें कैश कोई भी ऑपरेटिंग कांस्टेंट नहीं होता है, कोई भी अवरोध या रुकावट पैदा नहीं करता है। एज गवर्नमेंट हैज़ अ मैक्रो मॉनिटरी रोल, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो मैक्रो मॉनिटरी का रोल होता है। तो ये कुछ बेसिक से आपके डिफरेंस हैं प्राइवेट सेक्टर के और पब्लिक सेक्टर के। जो मेन आपको कंसेप्ट था वो कंसेप्ट आपको ये समझना था जो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर काम करता है और इसमें क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं। इसके बाद आपके 2 पॉइंट्स और हैं, मिक्स्ड सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। ये वाले जो पॉइंट्स आपके छूटे हुए हैं, मतलब छूटे नहीं है, मतलब आगे का फर्दर टॉपिक है मिक्स सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। इसके बाद का लेक्चर में हम ये दोनों डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।